we have seen how to find inverse Laplace transform of a function whose denominator was quartic. Okay, s raised to 4 ka we had seen, we had revised that, and partial fraction method we have seen. Partial fraction method में we have seen how to find inverse Laplace transform where the denominators have repeated factors. Okay, so this is what we had seen in the previous lecture. Now in that, when the number of times the factor is repeated, if it becomes more, then partial fraction method becomes a little bit lengthy. So we had discussed that if that is the case, then we have an alternate method for finding inverse Laplace transform, and that is convolution theorem. Okay, so that is one case in our syllabus, one reason in our syllabus why we would use convolution theorem. The other case or other type of problem, other reason why we would use convolution theorem is if we are finding inverse Laplace transform of a function whose denominator contains s raised to 4 s square. Okay, that is, it is quadratic in s square and it is a perfect square. That is, if you replace s square by m, you get a quadratic equation in m, and if you find the roots, you get two roots and both of them are same. That is, you have got repeated roots. Repeated roots means that denominator is actually a perfect square. Okay, in this case, partial fraction method doesn't work. It is not valid. So in that case, we have to use convolution theorem. Okay, so this is what we had discussed in the previous lecture. What else we had seen was this. Yeah, this is what we had seen. Now, in this type of denominator, that is s minus a into s minus b raised to some power, that is s minus b is the repeated factor. When you have such a repeated factor, in such problems, we have got two options, two procedures for solving the problem. One is you can solve using partial fraction method. The other one is we can solve this using convolution theorem method. Okay. Now this is the other type. But then the other type of problem which I said, where we have to find inverse Laplace transform of a function whose denominator is s raised to 4 quartic denominator, perfect square. In that case, we cannot use partial fraction method. The only option available there is convolution method, convolution theorem method. Okay, all right. So now, having discussed so much about convolution theorem method, let us see today what this convolution theorem is. So today we are going to see finding inverse Laplace transform using convolution theorem. So first of all, let's see the statement of convolution theorem and then we will understand it and we'll apply it in problems. Okay. Now, first of all, here, if we have a function phi1 of s whose Laplace inverse is f1 of t. Okay, so we have one function in s, phi1 of s, whose inverse Laplace transform is f1 of t. There is another function phi2 of s whose inverse Laplace transform is f2 of t. So we have got two functions here, okay, and we know their inverse Laplace transform. Then inverse Laplace transform of their product. Okay, product means we are multiplying both the functions together. So inverse Laplace transform of phi1s into phi2s equal to integral 0 to t f1u f2 of t minus u du. Okay, so this is the statement of convolution theorem for inverse Laplace transform. Here, this expression on the right hand side, integral 0 to t f1 of u into f2 of t minus u du, this is called as, this is an operation, okay? This is called as convolution of the functions f1 and f2. Convolution is an operation which happens between two functions, two different functions ka we can take convolution. Okay. Now how this convolution operation is defined, that you can see from the right hand side over here. This is the definition of convolution of the functions f1 and f2. Okay, left hand side mein see we have multiplied.
this operation is called as multiplication, or product, we call it as product. So similarly, this right hand side is the convolution of f1 and f2. Since the operation convolution is involved, this theorem is called as convolution theorem. We will see more about this convolution, what this convolution is. We will see that in a minute. First of all, let us understand this statement. Okay. Now, coming to this, originally if you see, this convolution theorem was stated for Laplace transform. We are using this in our syllabus to find inverse Laplace transform, okay? But originally this convolution was, this convolution theorem was stated for Laplace transform. Now this is the original statement. This original statement says Laplace transform of convolution of f1 and f2. Now I have written here the definition of the convolution. It can also be represented as f1 star f2. So there is no fixed notation for convolution operation. Sometimes star is used, sometimes asterisk is used, sometimes some dot is used. So author to author, book to book, teacher to teacher, the the notation for the operation of convolution varies. The most popularly used notation is star or asterisk. Okay, so the Laplace transform of the convolution of f1 and f2 is equal to the product of their Laplace transform, equals to phi 1 into phi 2. Now this same thing, what we have done is we have brought this Laplace to the right hand side, so it becomes inverse Laplace. So we get inverse Laplace of phi 1 into phi 2 equal to convolute of f1 and f2. So that is how we get the statement of convolution theorem for inverse Laplace transform. Did we understand this? We don't have Laplace transform of convolution ka problems in our syllabus. We are using convolution theorem to find inverse Laplace transform. So this is the part that is included in our syllabus. Are we okay with this? Understood the statement of convolution theorem? Okay, fine. Now before going to the problems, okay, there are two things I would like to bring to your notice. There are two things I would like to discuss here. First of all, in the statement of convolution theorem, do you see ये integral है? Okay, integral 0 to t with respect to u. ये जो integral 0 to t है, we have come across this integral before also. इससे पहले भी ये इंटीग्रल 0 to t, ये वाला लिमिट्स का इंटीग्रल हमने पहले भी देखा है. कौन से टॉपिक में देखा है? लप्लास ट्रांसफॉर्म वाले टॉपिक में देखा है या इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक में देखा है? किसी को याद है? लप्लास ट्रांसफॉर्म, वेरी गुड जीत. लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल में देखा था. Yes, Laplace transform of integral property में. Okay. Now when we were seeing that property, एक बात हमने ध्यान दिया था कि Laplace transform, yes, correct. इसमें हमने एक बात ध्यान में दिया था कि यहाँ पर जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं 0 to t, now this is actually with respect to t, okay? लेकिन ये इंटीग्रल 0 to t acts like राजू रस्तोगी's हाउस, isn't it? राजू रस्तोगी का घर है ये. इसके अंदर जाते ही जो वेरिएबल t है वो u दिखाई देता है. ऑल राइट, सो दिस इज एक्चुअली f1 of t. यहाँ पे दिस u is actually t variable. This is with respect to t. Now when we saw Laplace transform of integral, वहां पर हमको एक्चुअली समझ में नहीं आया था कि वो u क्यों यूज करना है. हम t के साथ भी तो यूज कर सकते हैं. उसका रीजन अभी आपको यहाँ पर पता चलेगा. ओके, सो यहाँ पर अगर हम u के जगह पे t यूज करें तो ये भी एक t है. देयर इज अ डिफरेंस दैट इज टेकन t. नाउ दिस t इज डिफरेंट. ओके, दिस t इज डिफरेंट. ये जो अगर ये u के जगह पे हम t डालेंगे तो दैट विल बी द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन.
ये t डिफरेंट है, मतलब ये t जो है ये फाइनल आंसर में रहेगा. So this t is the parameter over here. Okay, this t is same as this t. ये t और ये t सेम है. ओके, जो फाइनल आंसर है वो ये वाले t पर डिपेंड होगा. तो अगर इसमें u के जगह पर हमने t यूज किया तो कौन सा वाला t कौन सा है वो कंफ्यूजन आ जाएगा. ओके, सम प्लेसेस दे यूज t1 t2, सम प्लेसेस दे यूज स्मॉल t कैपिटल T, लेकिन वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है. इसके लिए द सेफेस्ट नोटेशन इज दिस, एक t और दूसरा u. ओके, ऑल राइट. तो दिस इज द रीजन वाई ये इंटीग्रल 0 टू t में सिर्फ होता है ऐसा. हाँ, इंटीग्रल 0 टू t में के अंदर जब फंक्शन आता है द टाइम वेरिएबल t के जगह पे हम u यूज करते हैं. सो हियर दिस वेरिएबल u इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स टाइम. हम t ने यूज कर रहे हैं, u यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू नोट. नाउ द सेकेंड थिंग इज ये कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है ये हम थोड़ा I will just discuss, I will not go too much into detail, but I just introduce convolution, right? So I don't think you have come across convolution operation before. I'm not sure about it, but anyway, sorry, even if you have come across convolution wala operation before, I will just recall ki what happens in this operation. Ye operation mein kya hota hai? I will just recall it. You will be using it in wherever you are, handling signals. So you will be यूजिंग दिस ऑपरेशन कॉन्वोल्यूशन. तो इसका ये एक इंटरनेट में यू कैन विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग इन कॉन्वोल्यूशन. ये एक विजुअलाइजिंग कॉन्वोल्यूशन करके एक दिस इज एन एप्लेट. I was trying to, even in Wikipedia they have shown the the animation, इसको क्या बोलते हैं, simulation, sorry, yeah, simulation. I tried to get it, but उसमें कुछ तो it needs some installation, कुछ तो Java कुछ तो चाहिए उसको, which is missing on my laptop, so I couldn't get you the simulation. But you all can Google convolution theorem और उसमें Wikipedia में actually it shows you as an animation या फिर simulation, एक simulated animation दिखाता है जहाँ पर आप कोई भी दो फंक्शन इनपुट कर सकते हैं और उसका कॉन्वोल्यूशन कैसे हो रहा है तो वो आपको दिखाएगा स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो प्लीज डू ट्राई इट. विकीपीडिया में ही अवेलेबल है. इट्स अवेलेबल ऑन द विकीपीडिया पेज इटसेल्फ. इट इज अवेलेबल ऑन अदर apps, what you say, other links also. Okay, anyway, so here I have tried to, I'll try to explain to you the procedure of what happens in convolution. तो उससे पहले थोड़ा पीछे का स्लाइड दिखाती हूँ मैं. ये कॉन्वोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है फंक्शन f1, दूसरा है फंक्शन f2. अगर हम सिर्फ f1 बोले, यहाँ पर हमें पता है कि ये जो f1 है इट इज अ फंक्शन ऑफ t, तो ये फंक्शन को लिया, ये f1u इज सेम एज f1t, सिंस इट इज इनसाइड द इंटीग्रल वो u है, ये तो हमें पता चलता है. तो ये f1 एक पहला वाला फंक्शन को वैसा का वैसा लिया, दूसरा वाला फंक्शन जो है हमारा f2t, तो यहाँ पर लेकिन हमने f2t माइनस u लिया. सो व्हेन वी आर टेकिंग t माइनस u दैट मीन्स वी आर, ये t के जगह पे u है, ये यहाँ से ये फंक्शन कैसे आता है, we consider this as f2 of u when we are writing it inside the integral, correct? f2 of t is actually f2 of u. फिर हम इसको f2 of minus u करेंगे. f2 of minus u corresponds to inversion. तो ये दूसरे वाले फंक्शन को हम पहले इन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल f2u है, उसको f2 of minus u किया, माइनस यू किया मतलब उसको इन्वर्ट किया. इन्वर्ट मतलब अलोंग द वाई एक्सिस. मैं ग्राफिकली आपको जब एक्सप्लेन करूंगी तो और समझ में आएगा, यहाँ पर सिर्फ देख लेते हैं क्या क्या ऑपरेशन है. नेक्स्ट, अभी राइट नाउ वी हैव गॉट f2 ऑफ माइनस यू, दैट इज द इन्वर्टेड फंक्शन, उसमें हमने t ऐड किया, तो f2 ऑफ माइनस यू प्लस t which is f2 of t minus u. So when we add t, matlab we are shifting the function to the, we are shifting the function by t units. Okay, so this is what is happening over here. We are inverting the function and then we are shifting the function. तो उसके बाद ये f2 को पहले ऐसे तैयार किया, इन्वर्ट किया, शिफ्ट किया,
उसके बाद उसको f1 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन वी मल्टीप्लाई दीज टू फंक्शंस, ओके। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी इंटीग्रेट, ये मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ तो फंक्शन ही आएगा, तो उस फंक्शन का हम वी आर फाइंडिंग द एरिया अंडर द फंक्शन फ्रॉम 0 till t is this same t, okay। So this is what is happening in convolution। तो convolution में I just repeat again, f1 फंक्शन को वैसे के वैसे लिया, f2 में पहले उसको इन्वर्ट किया, फिर उसको शिफ्ट किया, ओके। एंड देन ये t जो है ये वेरिएबल है, t विल टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 0 1 2 3 ऐसा 0 0.1 0.2 ऐसे सारे, as and when you keep on putting values for t you will get value for this convolute, और वैसे आपका ये जो कॉन्वोल्यूशन का ग्राफ प्लॉट होता जाएगा। तो इसको इन्वर्ट करके फिर शिफ्ट करके मल्टीप्लाई किया, एंड देन वी फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम 0 to t, 0 से लेके जितना शिफ्ट किया है वो इंटरवल को कंसीडर करके उसका एरिया फाइंड आउट करते। दैट इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्वोल्यूशन, ओके। तो चलो लेट्स सी दिस। अब यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, this function we are considering as f1, this function we are considering as f2, okay। अब यहाँ पर ये जो f1 फंक्शन है इसको हमने वैसा ही रखा है, इसका हम कॉन्वोल्यूशन कैसे होता है वो देखेंगे। f1 को वैसा का वैसा रखा है, we have kept f1 as it is। f2 को इन्वर्ट किया, इन्वर्ट किया का क्या मतलब है, इसको इस तरफ लेकर आना है, यू नो यू हैव टू, इट्स लाइक टेकिंग अ मिरर इमेज। समझो कि यहाँ पर आपने मिरर रखा, ये जो अपना y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे मिरर अज्यूम करो, तो ये वाला जो फंक्शन है इसका इमेज कहाँ दिखेगा, यहाँ लेफ्ट साइड में दिखेगा। कैसे दिखेगा, दैट इज द इन्वर्जन, ओके। ये देखो ये ऐसा दिखेगा, दिस इज द y एक्सिस। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है, अपना ओरिजिनल फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। सो दिस इज ये f1 है, यहाँ पर f और g नोटेशन यूज किया है, सो f1 f2 इज ऑल्सो द सेम। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन दिस इज g ऑफ t, यहाँ पर ये g ऑफ माइनस t है, ओके। माइनस t मतलब you have to just take the mirror image, assuming the mirror is kept along the y axis, तो ये इस तरफ का इस तरफ आ जाएगा। आर यू एबल टू इमेजिन g ऑफ माइनस t, ओके। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये इसको एक ही ग्राफ में ड्रॉ किया है, ये अपना ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ t है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था लेकिन इन्वर्जन के बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, ओके। सो दिस इज g ऑफ t। अभी इसको हम शिफ्ट करेंगे, ऑलराइट। कितना शिफ्ट करना है, that depends, like you have to shift it by t units, you will be shifting it by t units। now t goes from 0 to infinity, तो यहाँ पर देखो t g of t minus u, तो here considering t is 0, तो मतलब यहाँ पर कुछ शिफ्ट ही नहीं हुआ है, वैसा का वैसा, ओके। एंड देन वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस, यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे तो इसका 0 ही आएगा, तो जो फंक्शन है उसका एरिया अंडर द कर्व, तो इन दिस केस इट विल बी 0। दैट इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्वोल्यूट फंक्शन एट t इक्वल टू 0। फिर अगर t इक्वल टू 1 चाहिए, वी विल शिफ्ट इट बाय 1 यूनिट, ये 1 यूनिट आगे जाएगा, ओके। देन t इक्वल टू 2 पे हमको वैल्यू चाहिए तो इसको 2 यूनिट आगे लेना है, तो ये देखो यहाँ पर सम आर्बिट्ररी यूनिट वी हैव टेकन इट, इसको शिफ्ट किया, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। मल्टीप्लाई करके इसके एरिया अंडर दिस कर्व, यहाँ पर देखो वी हैव शिफ्टेड इट फर्दर, देन वी मल्टीप्लाई दीज टू एंड एरिया अंडर द कर्व, ओके। सो एरिया अंडर द कर्व जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्वोल्यूशन फंक्शन एट दैट वैल्यू ऑफ t, जितना हम शिफ्ट कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर प्रोसीजर दिखा है, आई एम शोइंग यू वन मोर ग्राफ जहाँ पर जो कॉन्वोल्यूशन का ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ओके। सी ये हमारा f1 है, ये हमारा f2 है, तो कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है, f1 वैसा का वैसा रहता है, f2 को हमने पहले इन्वर्ट किया, सो दिस इज f1 u कंसिडर करो, f2 u कंसिडर करो, तो दिस इज f1 u, f2 ऑफ माइनस u, इसको हमने मिरर इमेज लिया along the y axis, इन्वर्जन दिया। अब इसको धीरे 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 आगे आगे बढ़ाते जाना है, ओके। सो यहाँ पर ये ग्रीन लाइन जो है
ग्रीन लाइन इज द प्लॉटिंग ऑफ द कॉन्वोल्यूशन। ओके, तो ये यहाँ पर आप जब तक ओवरलैप नहीं करेगा इस फंक्शन के साथ, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो जीरो ही रहेगा। ओके, बिकॉज दे आर नॉट डिफाइंड फॉर कॉमन वैल्यूज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से यहाँ तक F1 मल्टीप्लाइड है, बट यहाँ से यहाँ तक F2 का वैल्यू जीरो है। ओके, सो इसका वैल्यू जीरो ही आने वाला है, प्रोडक्ट का वैल्यू। सो इसको थोड़ा थोड़ा आगे करेंगे। अभी देखो यहाँ आगे किया, आगे करके अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे देर विल बी सम कॉमन एरिया, तो यहाँ पर हमको कुछ वैल्यू आएगा। सो फॉर दिस वैल्यू ऑफ t, देखो ये ग्रीन जो है ना, ये दिखा रहा है आपको कि दिस इज द जो एरिया, लाइक सपोज द एरिया कम्स आउट टू बी 5 यूनिट्स, तो द वैल्यू ऑफ द कॉन्वोल्यूट विल बी 5 यूनिट्स। फिर इसको थोड़ा और आगे करेंगे तो देर विल बी अ मोर ओवरलैपिंग एरिया, तो उसका एरिया कितना है फाइंड आउट करना है। सपोज नाउ द एरिया कम्स आउट टू बी से 56 यूनिट्स, सो वो वाले पॉइंट पे द वैल्यू ऑफ द कॉन्वोल्यूट विल बी 56 यूनिट्स। ऐसे करके हम प्लॉट करते जाएंगे। तो इसको आपको आगे 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 शिफ्ट करते जाना है एंड कीप ऑन टेकिंग द एरिया of the product function, area under the product function from 0 to t. So this green function which is plotted is the convolution function. ये अगर आप इसका जब सिमुलेशन देखोगे तो वो बहुत और इजी हो जाता है समझने में। आई एम सॉरी आई कुडंट गेट द सिमुलेशन, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू प्लीज गो टू द गूगल करो, विकीपीडिया पेज में जाओ और आपको इसका सिमुलेशन मिल जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है? ओके, तो कॉन्वोल्यूशन एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है, एक तो दो फंक्शन इन्वॉल्व रहता है। पहला फंक्शन वैसा का वैसा रहता है, दूसरा फंक्शन का क्या होता है, उसका हम इन्वर्जन लेते हैं, फिर उसको शिफ्ट करते हैं, फिर पहले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो प्रोडक्ट है फंक्शन है उसके उसका एरिया उसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट फंक्शन के अंडर एरिया कैलकुलेट करते हैं ओवर द इंटरवल 0 to t। फिर उसका जो एक आंसर आता है दैट इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्वोल्यूशन। ओके, सो टफ जॉब फाइंडिंग कॉन्वोल्यूशन। ओके, अभी आपको समझ में आया होगा व्हाई देयर इज नीड ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। आई जस्ट गो बैक द स्लाइड्स। तो ये एज आई टोल्ड यू दिस इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो फाइंडिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन, अब ये कॉन्वोल्यूशन को सिंप्लीफाई करो और फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो, ये बहुत टीडियस हो जाता है। बट ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की वजह से बहुत इजी हो जाता है। मतलब कॉन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन इज सिंपली मल्टीप्लीकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। इसके लिए अगर आपको कॉन्वोल्यूट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ F1 F2 क्या है पहचानो, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता है तो उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज हाउ convolution theorem makes finding Laplace transform of the convolute very easy. Okay, अब इसको हम inverse Laplace transform में भी use कर सकते हैं for the two types of problems which I have already discussed. Okay, all right, now let's come to the problems. This we have already discussed. अच्छा, so now the first problem which I am starting is a very simple problem. This I am starting with a simple problem so that we understand the procedure well. Okay, तो क्वेश्चन है यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस ए। अभी ये वाले फंक्शन को आप आराम से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट आई हैव टेकन अ सिंपल फंक्शन इन द फर्स्ट क्वेश्चन सो दैट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करने का जो प्रोसीजर है वो हमें अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, तो वी हैव टू फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस ए। लैप्लास इनवर्स के लिए जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है दैट इज यूज्ड टू फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। मतलब यहाँ पर अंदर है ना, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड होने चाहिए, और दो फंक्शन जो मल्टीप्लाइड है वो कैसे होने चाहिए, पहले फंक्शन का भी लैप्लास इनवर्स हमें पता होना चाहिए, दूसरे फंक्शन का भी लैप्लास इनवर्स पता होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज वी विल राइट दिस एज Laplace inverse of product of two functions. So 1 upon s into s plus a को हमने लिखा 1 upon s
इंटू 1/s+a। तो ये दो फंक्शन हो गया। ओके, अब इन दोनों में से आप किसी भी फंक्शन को phi1 बुला सकते हो और किसी भी फंक्शन को phi2 बुला सकते हो। ओके, अभी इसके आगे का जो कैलकुलेशन है उसमें इंटीग्रल इन्वॉल्व है, तो हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए it is preferable that we take the easier function as phi2s. Why? phi2s का जो when I say easier function, I mean that function जिसका Laplace inverse simple है, उसको हम phi2 कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में phi1 का जो लप्लास इनवर्स है दैट इज f1, वो तो वैसा का वैसा रहता है। phi2 का जो लप्लास इनवर्स है दैट इज f2, उसका क्या होता है, वो इन्वर्ट होता है, फिर वो शिफ्ट होता है एंड देन इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद f1। ओके, सो दैट इज अंडरगोइंग लॉट ऑफ थिंग्स। सो अगर वो सिंपलर फंक्शन रहेगा तो हमारा कैलकुलेशन इजी रहेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई वी टेक द इजियर फंक्शन एज phi2s। व्हेन आई से इजियर फंक्शन, आई मीन कि इसका जो इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म है वो सिंपल रहना चाहिए। तो इन दोनों में से सिंपलर फंक्शन ये है, इजियर फंक्शन। सो वी विल टेक दिस एज phi2 क्योंकि इसका लप्लास इनवर्स 1 है, इसका लप्लास इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e raised to -at, करेक्ट नो? तो 1 is the simpler function, so we take this as phi2 and we take this as phi1. Okay, so we say let phi1 be 1/s+a and phi2 be 1/s. आप अदरवाइज लेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थोड़ा इंटीग्रेशन के एक दो स्टेप्स बढ़ जाएंगे और कुछ डिफिकल्टी नहीं होगा। सो डोंट टेक मच स्ट्रेस ओवर दिस। ओके, सो बट देन दिस इज प्रेफरेबल। ओके, अभी हमें phi1 और phi2 पता चल गया। अब पहला काम क्या करना है, इनके लप्लास इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट वी फाइंड लप्लास इनवर्स ऑफ phi1s which is Laplace inverse of 1/s+a here. The Laplace inverse of 1/s+a ये standard formula है, so this gives us e raised to -at and this is our f1 of t. Okay, तो हमने पहले फंक्शन का Laplace inverse फाइंड आउट कर दिया है। अब बिफोर गोइंग फॉर द सेकेंड फंक्शन, इसको हम तैयार करते हैं फॉर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में हमें f1 ऑफ t नहीं चाहिए, हमें f1 ऑफ u चाहिए। तो इफ f1 of t is e raised to -at, then f1 of u will be e raised to -au. ओके, तो अब ये फंक्शन तैयार हो गया है फॉर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, अब सेकेंड फंक्शन को लेते हैं, दैट इज phi2 of s। इसका लप्लास इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। Now Laplace inverse of phi2 of s will be Laplace inverse of 1/s. Now Laplace inverse of 1/s is 1. Okay, and this is our f2t. Okay, so f2t मिल गया, इसको भी तैयार करते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए। इसको तैयार करना है मतलब what do we have to do? We want f2 of t minus u, तो t के जगह पे t minus u डालना है, करेक्ट? बट देन यहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें कोई t दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई t है ही नहीं, तो आप t के जगह पे t माइनस यू नहीं डालोगे। सो f2 ऑफ t माइनस यू विल बी सेम एज 1। ओके, यू सी हाउ इट इज इजी। ये सेकेंड वाला फंक्शन जब हम इजी लेते हैं तो ये वाला प्रोसेस करने के बाद जो फंक्शन मिलता है वो भी इजी रहता है, तो बाद में का इंटीग्रल में थोड़ा हमें कैलकुलेशन इजी हो जाता है। Okay, so this is the first thing that we are going to do. Okay, I repeat what we have done here. First step is identify phi1 and phi2. Second step is phi1 का Laplace inverse find out करो and then find f1 of u. phi2 का Laplace inverse find out करो, find f2 of t minus u. ये अपना second step हो गया। थर्ड स्टेप में इन दोनों को कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में सब्स्टिट्यूट करेंगे। या एनीवन हैज एनी डाउट? किसी ने माइक्रोफोन ये किया है, ऑन किया है, कुछ डाउट है? ओके, आई कंटिन्यू। किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। ओके, तो हमें ये f1u मिला और ये f2t माइनस u मिला। अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। हर बार जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है यू विल हैव टू राइट द एंटायर स्टेटमेंट ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, सो वी से बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम Laplace inverse of phi1s into phi2s equal to integral 0 to t
f1 of u into f2 of t minus u du. ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट लिख दिया. अब इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे phi1s, phi2s, f1u, f2 t minus u. अब phi1s into phi2s is this and f1 of u we got from here, इसको हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया, f2 of t minus u यहाँ सब्सटीट्यूट किया, तो सब्सटीट्यूशन हो गया. अब e raised to minus au into 1 is e raised to minus au. So now we have to perform this integration, integral 0 to t e raised to minus au with respect to u. Okay, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, दिस ये मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s, Laplace inverse of 1 upon s into s plus a. Now this will be equal to e raised to minus a into u upon u के साथ कौन मल्टीप्लाइड है, माइनस a, तो यहाँ पे डिवाइड होगा माइनस a and this has to be evaluated from 0 to t. ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया. अब हमें लिमिट सब्सटीट्यूट करना है. सो हियर दिस कांस्टेंट माइनस a को हमने यहाँ पर बाहर निकाला है, सो वी गेट 1 अपॉन माइनस a. अब यहाँ पर जब हम u के जगह पे t डालेंगे, वी गेट e रेज टू माइनस at. देन सेकेंड लिमिट के लिए सब्ट्रैक्शन, जब हम यहाँ पर 0 डालेंगे, u के जगह पर 0, वी गेट e रेज टू माइनस a into 0 which is e रेज टू 0. Okay, now we know the value of e raised to 0, it is 1, so we get 1 upon minus a e raised to minus at minus 1. You can leave the answer here or if you want ये minus को हम अंदर ले सकते हैं, तो this would be 1 upon a into 1 minus e raised to minus at and that is the final answer. Did we understand how to use convolution theorem for finding inverse Laplace transform? ओके, अभी सबको प्रोसीजर समझ में आ गया. आई विल जस्ट रिपीट द प्रोसीजर. कॉन्वोल्यूशन थियरम यूज करके इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. 3 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप में phi1 और phi2 आइडेंटिफाई करना. सेकेंड स्टेप में phi1 और phi2 का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करके f1 f2 मिलेगा. उसमें से हम f1 ऑफ u फाइंड आउट करके रखेंगे, f2 ऑफ t माइनस u फाइंड आउट करके रखेंगे. थर्ड स्टेप में ये phi1 phi2 f1 u f2 t माइनस u इसको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वाले स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो जो इंटीग्रल आता है राइट हैंड साइड में उसको इवैल्यूएट करेंगे. ओके, दिस इज द प्रोसेस. All right, so this was a warm-up problem. Let's start with this problem. Okay, now using convolution theorem, find Laplace inverse of s upon s square plus 1 into s square plus 4. अब ये वाला प्रॉब्लम हमने इसमें देखा है पार्शियल फ्रैक्शन में. एनीवन रिमेंबर्स ये वाले प्रॉब्लम को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कैसे सॉल्व किया था? सॉरी, एनीवन रिमेंबर्स ये वाला क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में हमने कैसे किया था? वेरी गुड सनमित, सोनिया. as प्लस बी नहीं था, as प्लस बी इज करेक्ट, बट हमने एक शॉर्टकट मेथड देखा था ना. लैप्लास इनवर्स है तो वी लुक एट द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में देखो दो फैक्टर्स है, s स्क्वायर है, s स्क्वायर है. न्यूमरेटर में s स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं, इस s को हम हटा के रखेंगे. For partial fraction we replace s square by m and then we go for the partial fraction. Remember? Okay, तो इसको partial fraction method से भी कर सकते हैं. Okay, अब इसको हम convolution theorem वाले method में solve करेंगे. अच्छा, अभी आपके एग्जाम में suppose the question is find inverse Laplace transform of, सिर्फ इतना ही है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो, आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज कर सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइस. ओके, बट इफ इन द क्वेश्चन दे से यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 4 ऐसे मेंशन किया है कि यूज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, you don't have any option, you have to solve this using convolution theorem. इवन इफ पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड ज्यादा इजी है तो भी यहाँ पर मेंशन किया है इसके लिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मेथड ही यूज करना है.
ओके। और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करने का एक प्रॉब्लम आपके एग्जाम में हमेशा आता है. इट कुड बी फॉर 6 marks, it could be for 8 marks depending on the length of the solution. All right, so let us look at this now. So we have to find Laplace inverse of s upon s square plus 1 into s square plus 4. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर हमें phi 1 इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लिखना है. अब इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लिखने के दो ऑप्शन है. ये डिनोमिनेटर तो दो है, तो प्रोडक्ट में ये एक डिनोमिनेटर बनेगा एस स्क्वायर प्लस 1 और ये दूसरा डिनोमिनेटर बनेगा एस स्क्वायर प्लस 4. अब ये जो न्यूमरेटर वाला s है, इसको आप यहाँ लिख सकते हो या फिर यहाँ लिख सकते हो, दोनों भी करेक्ट है. ओके, फाइनल आंसर हमारा सेम आएगा. यहाँ पर मैंने इसके साथ लिखा है बिकॉज यहाँ 4 है. ओके, ये 1 है तो ये इसका लैप्लास इनवर्स में साइन आएगा और इसके लैप्लास इनवर्स में कॉस आएगा, तो ये 4 रहेगा, तो भी इसमें कुछ हमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा. इट्स नॉट अ ग्रेट डील एडजस्टिंग, बट देन स्टिल उसमें एक स्टेप बचता है हमारा. ओके, तो ये हमने इसको लिखा है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. अब ये जो फंक्शन है इसका लैप्लास इनवर्स, ये जो पहला वाला फंक्शन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका लैप्लास इनवर्स आता है साइन टी. और ये जो फंक्शन है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, इसका लैप्लास इनवर्स आता है cos 2t. यहाँ पर अगर आप देखेंगे साइन टी cos 2t दोनों में देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर सेम टाइप ऑफ फंक्शन, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो इसमें ऐसे इजी ऐसा कुछ नहीं है. You can take any one as phi 1 and any one as phi 2. In this problem, it doesn't matter. Okay. But यहाँ पर cos 2t आता है, तो इसके लिए मैंने इसको phi 1 लिया है और यहाँ पर सिर्फ sin t आता है. Only for that reason I have chosen this function as phi 2. Okay. So we are considering phi 1 as s upon s square plus 4, phi 2 as 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. तो ये अपना पहला स्टेप बन गया जहां पर हमने phi 1 और phi 2 को आइडेंटिफाई कर लिया. ओके, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये phi 1 का इनवर्स लैप्लास और phi 2 का भी इनवर्स लैप्लास फाइंड आउट करना है. लेट्स स्टार्ट विथ phi 1. सो लैप्लास इनवर्स ऑफ phi 1 ऑफ s is Laplace inverse of s upon s square plus 4. This we know is cos 2t. Okay, and this is our f1t. Laplace inverse of phi 1 of s is f1 of t. इसको तैयार करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए. कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में हमें क्या चाहिए, f1 of u चाहिए. तो यहाँ t के जगह पे u डालेंगे तो we get cos 2u. All right. Next, let us take Laplace inverse of phi 2s, which is Laplace inverse of 1 upon s square plus 1. Now this is sin t and this is our f2 of t. अब इसको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए तैयार करेंगे, मतलब हमें क्या चाहिए, f2 of t minus u. तो यहाँ पर t के जगह पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे t minus u. So we get f2 of t minus u is sin of t minus u. ओके, सो ये हमारा सेकेंड स्टेप भी हो गया और हमें मिला है f1 of u is cos 2u, f2 of t minus u is sin of t minus u. Now third step में first of all we will write down the statement of convolution theorem. So by convolution theorem, Laplace inverse of phi 1s into phi 2s equal to integral 0 to t f1u into f2 of t minus u du. ओके, तो ये स्टेटमेंट लिख दिया कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का. अब क्या करना है, अब इसमें phi 1 phi 2 सब्सटीट्यूट करेंगे. यहाँ पर f1 of u f2 of t minus u जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे. तो अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी गेट लैप्लास इनवर्स ऑफ, आई थिंक आई हैड टेकन दिस एज phi 1, तो एनीवे इन प्रोडक्ट इट डजंट मैटर. So we get Laplace inverse of 1 upon s square plus 1 into s upon s square plus 4 equal to integral 0 to t f1 u है cos 2u into f2 of t minus u है sin of t minus u. तो ये सब्सटीट्यूशन हो गया. ओके, सो दिस इज द स्टेप वी हैव गॉट. अब इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है. इस इंटीग्रल में क्या है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, तो हम इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, u इंटू वी रूल यूज करेंगे. करेक्ट,
किसको u लेना है और किसको v लेना है? u इंटू वी रूल यूज करेंगे ना, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो। साइन को u लेना है या कॉस को u लेना है? यस पूजा, डिफैक्टराइजेशन। एनी, बोथ आर t function. शुभम, any मतलब you can take anyone as u, मतलब you are saying we are going to use u into v rule. yes शुभम, u into v rule यूज करेंगे। yes मे बी नहीं, क्लियरली बताना है मुझे, yes और no। वो yes के बाद मे बी नहीं चलेगा। ओम इज करेक्ट, टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करना है। शुभम, व्हाई कांट वी यूज u into v रूल यहाँ पर? याद आ रहा है? ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक में किया था। यहाँ पर u इंटू वी क्यों नहीं यूज कर सकते? u इंटू वी रूल फॉर इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं? बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक, वी वुड कीप ऑन इंटीग्रेटिंग एंड नेवर गेट द आंसर। एक्सेलेंट जीत, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, ट्रिगो इंटू ट्रिगो है इसलिए। यस खुशी, यू आर राइट, ट्रिगो इंटू ट्रिगो है इसके लिए। ओके, और ट्रिगो इंटू ट्रिगो है तो क्या फर्क पड़ता है? उसका आंसर जीत ने दिया है, देखो बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक। आप एक को इंटीग्रेट करते हो और एक दूसरे को डेरिवेटिव करते हो। साइन का इंटीग्रल कॉस, कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव में माइनस साइन, एंड यू विल कीप ऑन गोइंग, इट विल नेवर स्टॉप। ओके, तो वो आपका एक सीक्वेंस बनेगा। देन यू विल हैव टू सिंप्लीफाई द सीक्वेंस, ये बहुत टीडियस हो जाएगा। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज u इंटू वी रूल जो हमें यूज करना है इंटीग्रेशन के लिए, कब यूज करते हैं? व्हेन बोथ द फंक्शंस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये पॉइंट बोला था, याद है जब हमने इंट्रोड्यूस किया था? मतलब एक अगर एल्जिब्रिक है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। हाँ, अभी याद आया? ओके, तो अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, u इंटू वी रूल के बारे में सोचना भी मत, सिर्फ घूमते रह जाओगे उसमें, u इंटू वी रूल में आंसर कभी नहीं मिलेगा। ओके, ऑल राइट, नाउ हियर एज किसने फॉर्मूला दिया है? ओम ने हमें सजेस्ट किया है टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर कॉस ए साइन बी तो है, ये टू मिसिंग है, तो लेट्स गेट दैट टू इनटू द पिक्चर। सी यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए डिवाइड भी कर दिया है और उसको इंटीग्रल के बाहर रखा है। ओके, नाउ टू कॉस ए साइन बी, क्या है टू कॉस ए साइन बी? कोई बताओ मुझे फॉर्मूला। टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है? गूगल करो फटाफट, गूगल करो और आंसर दो। जीत, वेरी गुड। साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, साइन ऑफ ए प्लस बी, वेरी गुड, साइन माइनस साइन। ओके, किसी को गूगल की जरूरत नहीं पड़ी, याद है। यस जी, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। ओ, टाइपिंग एरर हुआ, समझ में आया है। सो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, हियर ए के जगह पे 2u है, b के जगह पे t माइनस u है। तो चलो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। So this will be half integral 0 to t sine of a, that is 2u, plus b, that is t minus u. Okay, minus sine of a, that is 2u, minus b, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा माइनस टी प्लस यू। ओके, तो ये हमने फॉर्मूला यूज कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये देखो 2u माइनस u क्या बनेगा? u. So we get this is half sine of u plus t minus sine of 2u plus u क्या बनेगा? 3u minus t. तो अब ये दो साइन फंक्शन है अलग अलग। नाउ वी कैन इंटीग्रेट देम। ओके, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन?
साइन का इंटीग्रल क्या है? माइनस कॉस. वेरी गुड, एक्सेलेंट. ओके, तो यहां पर आएगा ये हाफ, एंड साइन ऑफ u प्लस टी का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस ऑफ u प्लस टी. दैट्स इट. इंटीग्रल इज विथ रिस्पेक्ट टू u. आई हैव जस्ट रिटन दिस टू एम्फोसाइज दैट हमें डिवाइड करना है कोएफिशिएंट ऑफ u के साथ. ओके, ये वाले टर्म में हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज द कोएफिशिएंट इज 1. दिस इज जस्ट टू जनरलाइज. ओके, देन नेक्स्ट क्या है? ये वाले साइन का इंटीग्रल भी आएगा माइनस कॉस, बट यहाँ पर एक ऑलरेडी माइनस प्रेजेंट है, तो ये माइनस और माइनस कॉस का माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके हमें प्लस मिलेगा, कॉस ऑफ 3 इंटू यू माइनस टी, और इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो u का कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ 3 से डिवाइड होगा. दिस एंटायर थिंग हैज टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 टू t. ओके, ऑलराइट, तो इंटीग्रेशन हो गया. अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो पहले सब्स्टिट्यूट होगा लिमिट t. तो देखो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर है हाफ. हियर व्हेन यू पुट u इक्वल्स टू t, सो यू गेट माइनस कॉस t प्लस t प्लस कॉस ऑफ 3t माइनस t अपॉन 3. ये फर्स्ट लिमिट के लिए साइंस रिमेन द सेम. सेकेंड लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, वी सब्ट्रैक्ट, सो द साइंस विल बिकम रिवर्स, साइंस उल्टा हो जाएगा. तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 प्लस टी. ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 माइनस टी अपॉन 3. ओके, ये जस्ट सब्स्टिट्यूशन किया है. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ माइनस कॉस टी प्लस टी इज 2t प्लस कॉस ऑफ 3t माइनस टी इज 2t अपॉन 3 प्लस cos of 0 plus t मिलता है cos t, and here minus, see cos of 0 minus t is cos of minus t, but cos of minus t is what? Cos t itself. Yes, Kaushik has already got the answer. cos फंक्शन का हमने देखा था ना, cos के अंदर अगर नेगेटिव है तो उसको खा जाता है, so cos of minus t is cos t. साइन ऑफ माइनस टी, साइन फंक्शन क्या करता है, साइन को माइनस साइन हजम नहीं होता है तो वो माइनस को बाहर फेंकता है, बट कॉस खा लेता है, सो दिस इज कॉस टी. ओके, नाउ हियर कॉस 2t कॉस 2t, कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 1 प्लस 1 बाई 3, सो दैट इज माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 बाई 3, and here cos t, यहाँ पे 1 minus 1 by 3, that is 3 minus 1, 2 by 3. Okay, so this is half minus 2 by 3 cos 2t plus 2 by 3 cos t. अब इसमें हमें चाहिए तो ये 2 by 3 देखो कॉमन कोएफिशिएंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 1 by 3 माइनस cos 2t प्लस cos t. इसको हम जैसे कौशिक ने लिखा है ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट द cos t टर्म फर्स्ट एंड माइनस cos 2t टर्म नेक्स्ट, या फिर हम इसको ऐसे ही आंसर को लीव कर सकते हैं. डिड वी अंडरस्टैंड दिस? आई एम टेकिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू चेक ऑल द पॉसिबल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स वी गेट इन द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. ओके, जो अलग अलग टाइप के हमें इंटीग्रल आ सकते हैं वैसे हम प्रॉब्लम्स ले रहे. तो ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया, यहाँ पर इंटीग्रेशन में 2 ट्रिगो फंक्शन आया था. Did we understand this? Okay, great. Easy लग रहा है? Easy है? Okay, थोड़ा easy है, बहुत easy है? Easy. Much better than partial fraction. Yes, जी, that's correct. Okay, now that our integration has become very strong, okay, हमको ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बहुत आसान लगेगा. ओके, नाउ वी विल डू वन मोर प्रॉब्लम. अब ये देखो, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसके लिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बहुत आपको काम आएगा. यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2 रेज टू 4. मैंने थोड़ा यहाँ पर पावर हाई पावर लिया है, 4 से कम पावर है तो आप आराम से कर ही लोगे. वी विल ट्राई पावर 4. बाय द वे, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में ये पावर कितना है फर्क नहीं पड़ता है. यू विल सी दैट आफ्टर सीइंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस. ओके, कोई भी पावर हो, द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन विल रिमेन द सेम. ओके, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही टीडियस होने वाला है.
So anyway, let's start with this. We have to find Laplace inverse of 1 upon s minus 2 the whole raised to 4 into s plus 3. तो पहले इसको हम product of two function लिखते हैं. That is, it will be Laplace inverse of 1 upon s minus 2 the whole raised to 4 into 1 upon s plus 3. Okay? अभी हमको क्या ध्यान में रखना है? phi 2 और phi 1 और phi 2 choose करना है step 1 में. phi 2 has to be the easier function. तो इन दोनों में से हम phi 2 किसको लेंगे? 1 upon s plus 3 is preferred to be phi 2. Yes, correct Amol, Ashish, Abhinav, Amit. Yes. तो ये इसका ये ज्यादा इजी रहेगा ना, ये 1 upon s minus 2 the whole raised to 4 ये ज्यादा इजी नहीं रहेगा. ओके, so we are taking this 1 upon s minus 2 the whole raised to 4 as phi 1s and 1 upon s plus 3 as phi 2s. ओके, तो ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया. हमने phi 1 और phi 2 को आइडेंटिफाई कर लिया. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू स्टेप 2. स्टेप 2 में सबसे पहले phi 1s का लप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है. सो लप्लास इनवर्स ऑफ phi 1s इज लप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s minus 2 the whole raised to 4. अब अगर आप देखोगे ये जो है स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर नहीं है. इस s माइनस 2 के जगह पे अगर s होता तो ये स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर होता s रेज टू n के फॉर्म में. ओके, तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करके s माइनस 2 के जगह पे s रिप्लेस करेंगे. न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो नॉट एन इशू. सो यहाँ पर s माइनस 2 के जगह पे s रिप्लेस करना है तो बाहर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? e रेज टू 2t. यस, करेक्ट, करेक्ट अनुपम. So this is e raised to 2t into Laplace inverse of 1 upon s raised to 4. अब तो ये स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर बन गया है. अभी फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ डिनोमिनेटर में s raised to 4 है तो न्यूमरेटर में कौन चाहिए? gamma of 4. एक्सेलेंट अभिनव, अमित, वेरी गुड. तो अब ये gamma of 4 हम एडजस्ट करेंगे. ओके, सी हियर e raised to 2t अपॉन gamma of 4 किया और यहाँ लप्लास इनवर्स ऑफ gamma of 4 अपॉन s raised to 4. अब ये जो लप्लास इनवर्स है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. कोई बताएगा ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आएगा? t raised to क्या आएगा? क्यूब. वेरी गुड परेश. ओके, gamma of 4 का वैल्यू क्या है? यस अमित, धीरज, करेक्ट, t क्यूब. अब नो कंफ्यूजन, राइट? ओके, gamma of 4 क्या आएगा? यस तनिषा, 6. ओह, सबने डायरेक्ट कैलकुलेट किया भाई, स्टेप बाय स्टेप. ओके, सी gamma of 4 का एक फॉर्मूला होता है. यहाँ पर आपके पास एक मौका है शो ऑफ करने का कि आपको ये फॉर्मूला आता है. सो फर्स्ट राइट gamma of 4 as 3 factorial and then substitute it as 6. Okay, yeah, डायरेक्टली 6 मत करना. आंसर इज करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, बट देन एज आई टोल्ड यू ना, जहां मौका मिलता है शो ऑफ करने का थोड़ा हम शो ऑफ करेंगे. ओके, so this is e raised to 2t upon 3 factorial into t cube. अब next step में 3 factorial को 6 लिख दिया. so this is e raised to 2t into t cube upon 6. तो ये हमारा f1t है. अब इसको तैयार करना है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में जाने के लिए. तो that will be just 1 minute. Dears, hold on. Hello. Sir, I'm in a lecture. Can I please call you back? हाँ. या सॉरी, या सो हियर f1 ऑफ t. ओके, अब इसको तैयार करना है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए. तो f1 ऑफ u, इसमें t के जगह पे u डालेंगे तो वी गेट e raised to 2u into u cube upon 6. तो ये पहला वाला फंक्शन का हो गया. दिस इज f1 ऑफ u दैट वी हैव गॉट. नेक्स्ट विल फाइंड लप्लास इनवर्स ऑफ phi 2 ऑफ s which was Laplace inverse of 1 upon s plus 3. ये तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला है e raised to minus 3t. ओके, दिस इज आर f2 of t. इसको तैयार करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में जाने के लिए. सो वील हैव टू फाइंड f2 of t minus u. सो दैट वुड बी e raised to minus 3 into t minus u. Okay, now here I will suggest you something कि before substituting anything into convolution theorem उसको हमेशा एकदम simplify करना. तो बाद में जो integration में अंदर के अंदर substitute करने के बाद आपका calculation में less confusion रहेगा और calculation भी easy हो जाएगा. Okay, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये bracket को थोड़ा open करते हैं. So this becomes e raised to minus 3t, minus 3 into minus u will become plus 3u.
ऑल्सो इसको सेपरेट करते हैं, सो दिस विल बी ई रेज टू माइनस 3t इंटू ई रेज टू 3u. ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी आर f2 ऑफ t माइनस यू. तो अब हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया है. हमने लप्लास इनवर्स ऑफ फाई 1 फाइंड आउट किया, लप्लास इनवर्स ऑफ फाई 2 फाइंड आउट किया, और जो f1 और f2 मिला उनको हमने तैयार कर दिया है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए. नाउ वी गो टू स्टेप 3. Step 3 में we state convolution theorem first. So by convolution theorem, Laplace inverse of phi 1s into phi 2s equal to integral 0 to t f1u into f2 of t minus u du. Okay. Next step में इसमें हमें अपना phi 1, phi 2, f1u, f2 t minus u जो मिला है वो सब्सटीट्यूट करना है. phi 1 और phi 2 तो ये है अपना. So we get Laplace inverse of 1 upon s minus 2 the whole raised to 4 into 1 upon s plus 3 equal to integral 0 to t e raised to 2u into u cube upon 6, and f2 of t minus u we got it as e raised to minus 3t into e raised to 3u. ओके, अब इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर सबसे पहले जो जो कॉन्स्टेंट्स है उसको इंटीग्रल के बाहर निकालते हैं. सी दिस इंटीग्रल इज विथ रिस्पेक्ट टू u, तो जहां जहां u प्रेजेंट नहीं है वो कांस्टेंट रहेगा. सो यू कैन सी दिस e रेज टू माइनस 3t, ये तो u का फंक्शन नहीं है. सो एज फार एज दिस इंटीग्रल इज कंसर्न्ड दिस विल बी अ कांस्टेंट. तो ये e रेज टू माइनस 3t को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये 6 को हम बाहर निकाल सकते हैं. ओके, सो वी गेट e रेज टू माइनस 3t अपॉन 6. नाउ दिस e रेज टू 2u इंटू e रेज टू 3u ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, and we get integral 0 to t e raised to 5u and this u cube du. Okay, so this is what we get. Now see, this is so simple and so nice. Okay, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है. इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ बताओ. Will take approximately 4 to 5 minutes for completing the problem. तो आपका 2-3 मिनट में थोड़ा ज्यादा लूंगी. या u into v rule, excellent excellent all of you all. यहाँ पर u into v क्यों लेंगे? बिकॉज इंटीग्रल के अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लाइड है. देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन है. ओके, अब इन दोनों में से u किसको चूज करना है, v किसको चूज करना है? दैट इज बाय लिएट रूल. अदरवाइज ऑल्सो जब हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन होता है तो हम हमेशा एल्जेब्रिक फंक्शन को u चूज करते हैं. सो आई एम जस्ट री राइटिंग दिस with this u cube as the first function and e raised to 5u as the second function. Okay, तो हमें ये मिल गया. All right, now let us use the generalized u into v rule. Now I have written it in one statement because I know you will understand it. Let's see the procedure. e raised to minus 3t upon 6 ये देखो यहाँ पर लिखा. फर्स्ट टर्म में ये जो u cube फर्स्ट है, u cube वैसा का वैसा सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल आएगा. तो e रेस टू 5u का इंटीग्रल आता है e रेस टू 5u अपॉन 5. ओके, देन साइन चेंज माइनस, ये फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव यहाँ आएगा. तो u क्यूब का डेरिवेटिव है 3u स्क्वेर इनटू ये सेकेंड वाले का इंटीग्रल, ये e रेस टू 5u का इंटीग्रल आएगा e रेस टू 5u अपॉन 5. ऑलरेडी एक 5 यहाँ अवेलेबल है डिनोमिनेटर में तो वो मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट e रेस टू 5u अपॉन 25. ओके, ये हो गया. अब नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा. ये फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 3u स्क्वेर, u स्क्वेर का डेरिवेटिव है 2u, सो 3 इंटू 2u विल गिव अस 6u इंटू ये सेकेंड वाले का इंटीग्रल, इसके इंटीग्रल में क्या आएगा e रेज टू 5u अपॉन 25 इंटू 5 दैट इज 125. ओके, नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज, सो प्लस है तो यहाँ माइनस. पहले हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो 6u का डेरिवेटिव है 6 इंटू इसका इंटीग्रल आएगा e रेज टू 5u अपॉन 125 इंटू 5, सो दैट इज e रेज टू 5u अपॉन 625. नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज, तो माइनस का प्लस बनेगा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो आएगा, सो दैट मीन्स ऑल द फर्दर टर्म्स आर गोइंग टू बी जीरो, आवर इंटीग्रेशन इज डन. सो दिस इज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू t. ओके, तो ये इंटीग्रेशन क्लियर है. ओके, सो अब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, लिमिट्स सब्सटीट्यूट करेंगे. ओके, यस, ओके फाइन.
अभी मैंने आपको एक बताया था ना कि इसमें पावर का एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ 4 था तो आपको u क्यूब आया, अगर यहाँ पर जो भी पावर है u का एक पावर कम आएगा, सो यू विल जस्ट हैव मोर टर्म्स इन द स्टेप, सो आपका नंबर ऑफ स्टेप सेम रहेगा। ओके, सो दैट इज हाउ यहाँ पर जो भी पावर है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में फर्क नहीं पड़ता है। ओके, एनीवे, coming to this now, first we put u equal to t minus, then we put u equal to 0, तो देखते क्या मिलता है, e raised to minus 3t upon 6, यहाँ पर पहले हमने t डाला तो we get t cube into e raised to 5t upon 5 minus 3t square into e raised to 5t upon 25 plus 6t into e raised to 5t upon 125 minus 6 into e raised to 5t upon 625, तो ये पहला लिमिट डाल दिया। सेकेंड लिमिट के लिए साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर माइनस, बट यहाँ पर जब आप u इक्वल टू 0 डालोगे तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। ये सेकेंड लिमिट है इसलिए ये माइनस का प्लस बन गया। यहाँ पर भी u मल्टीप्लाइड है तो u के जगह पे जब आप 0 डालोगे तो 0 मल्टीप्लाई होगा एंड द एंटायर थिंग बिकम 0। नेक्स्ट टर्म यहाँ प्लस है, सेकेंड लिमिट के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इसलिए इसका भी साइन चेंज होगा, माइनस 6 into 0, the entire thing becomes 0. Okay, so this entire thing becomes 0. नेक्स्ट टर्म के लिए ये माइनस है, जब आप 0 सेकेंड लिमिट है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जब आप 0 सब्सटीट्यूट करते हो तो यू गेट e raised to 0 एंड वी नो, ओके, नेक्स्ट स्टेप में e raised to 0 सब्सटीट्यूट करते हैं, सो वी गेट प्लस 6 into e raised to 0 अपॉन 625, तो ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये इसका हमें मिलेगा e raised to minus 3t upon 6, this remains the same, t cube e raised to 5t upon 5 minus 3t square e raised to 5t upon 25 plus 6t into e raised to 5t upon 125 minus 6 into e raised to 5t upon 625, ये सब 0 है, plus 6 into e raised to 0 is 1, so we get 1 upon 625. okay, so this is what we have। अब यहाँ पर ज्यादा कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा बिकॉज सी ऑल टर्म्स आर डिफरेंट। ओके, इसमें तो कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये e रेस टू माइनस 3t को आप अंदर ले सकते हैं। जब e रेस टू माइनस 3t को हम अंदर लेंगे, e रेस टू 5t के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट e रेस टू 5t माइनस 3t, दैट इज e रेस टू 2t। ओके, सो दैट इज व्हाट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्टेप। तो ये e रेस टू माइनस 3t को अंदर ले लिया तो बाहर बचा 1/6। Here we'll get t cube into e raised to 2t upon 5 minus 3t square into e raised to 2t upon 25 plus 6t into e raised to 2t upon 125 minus 6 into e raised to 2t upon 625। यहाँ पर सिर्फ constant term है तो plus 6 into e raised to minus 3t upon 625 and that is the final answer. Okay. So did we find convolution theorem method much better than the partial fraction method, at least for when we look at it with respect to this particular problem? Yes. Okay, very good. अभी हमने ये एक केस हैंडल कर दिया है। We have seen that convolution theorem we will use for one more case ना, that is when we have to find Laplace inverse of a function जिसका denominator s raised to 4 रहेगा और वो perfect square रहेगा। That we will see in the next lecture, that is in tomorrow's lecture. Tomorrow अपना 4th lecture है ना, तो उसमें हम देखेंगे। Okay, so that is all for today. I'm giving you 2 problems based on this, so this is for your practice. Okay, now quiz I have already told you, this week में whatever missing quizzes were there, last time I had assured you that I will put, but